अब आएगा, हेलो, आएगा, अब आ जाएगा, पहले 4 मिनट का वॉइस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे द हीट इज इंसिडेंट ऑन दिस बॉडी, आगे आगे मैं शुरू करना रह गया था माइक। करिए, ओके चेक किया, आ रही है मेरे ख्याल से आवाज अभी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द बॉडी और उसके ऊपर कोई सम लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट और सम रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन इट। क्यों इज द इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट हीट? इसमें से कुछ हीट जो होता है वो तो एब्सॉर्ब हो जाएगा, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये दिस हीट इज एब्सॉर्ब, सम पार्ट ऑफ दिस हीट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ दिस हीट इज ट्रांसमिटेड एज वी कैन सी देयर, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा टोटल हीट अगर क्यू है, लेकिन अगर मैं इस हीट बैलेंस इक्वेशन लिखूं, इफ आई राइट हियर द हीट बैलेंस इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पर हीट बैलेंस इक्वेशन लिखूं हो जाएगा जो मैंने, तो द हीट बैलेंस इक्वेशन क्या होगा बताइए? हीट बैलेंस इक्वेशन, इफ आई राइट हियर, देन द इनकमिंग हीट Q is equal to absorbed heat plus reflected heat plus transmitted heat, सही है। then I'll divide throughout by Q, क्या बनेगा? डिवाइडेड बाय Q, Q एंड Q, तीनों को Q से डिवाइड कीजिएगा। so what we get there, what we get there, यहाँ पे हमें ये रेशियो जो मिलेगा, this ratio QA upon Q, this is called as A, the coefficient of absorption. This ratio is called as R, coefficient of reflection or reflectivity. This ratio is called as coefficient of transmission or transmittivity. So these are all the new definitions we say. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? We say that this ratio, ये जो रेशियो है वो होगा A, coefficient of absorption. This ratio is R, coefficient of reflection or reflectivity, and this ratio is T, transmittivity, and that is equal to 1. Is that clear? So in this case we can say that this A plus R plus T is equal to 1. ठीक है? So what is A by the way? A क्या होता है जी? A absorption नहीं होता, A is coefficient of absorption. Coefficient of absorption. We also call this as absorptivity. We also call this as absorptivity. R, coefficient of reflection. Coefficient of reflection, we also call this as reflectivity. And T is called as coefficient of transmission. Coefficient of transmission.
We also call this as transmittivity. Transmittivity. Is that clear? ठीक है. So what is A is equal to? It is a ratio of QA upon Q. R is equal to QR upon Q, and T is equal to QT upon Q. ठीक है. Here I would like to discuss some special cases. यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करना चाहूँगा जो अपने टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं. स्पेशल केसेस. पहला स्पेशल केस, इफ R इज इक्वल टू 0 मतलब नो रिफ्लेक्शन, A इज इक्वल टू 0 मतलब नो एब्सॉर्प्शन, तो पूरा का पूरा हीट जो आएगा वो क्या होगा? ट्रांसमिट होगा. आगे ट्रांसमिट होगा. ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 1. सो आई कैन से QT अपॉन Q is equal to 1, and therefore the heat transmitted is equal to heat incident, pura heat. Now this पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसमिट कर रहा है, isn't it? Now such type of material is transparent to radiation. We call this as the transparent material to radiation. Is that clear? ठीक है. Radiation. All right. Second type of substance, if T is equal to 0, अगर उसका transmittivity 0 है, that means no heat is transmitted. No heat is transmitted. अगर कोई भी heat वो allow ही नहीं कर रहा है transmit करने को, तो we call this as, such substance is opaque to heat radiation. What do we call this as? Opaque to the heat radiation. Is that clear to you all? ठीक है. Alright. Third one is if T is not equal to 0, 0 तो नहीं है. ठीक है. तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर का सब्सटेंस हमने यहाँ पे बात करी है ना, इफ T is equal to 0, अगर T is equal to 0 इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब होगा A plus R is equal to 1. हाँ, isn't it? A plus R is equal to 1. तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है, this is also called as athermanous substance. क्या बोलते हैं इसको? athermanous substance. देखो MCQs में ये पूछा जा सकता है और किसी भी एग्जाम के, फॉर दैट सेक NCERT हो सकता है, नीट हो सकता है, JEE हो सकता है, CET हो सकता है, तुम्हारे कॉलेज के HSC या उसमें भी पूछा जा सकता है कि भाई athermanous मतलब उसके वेरियस ऑप्शंस दे देंगे वो. What is athermanous substance? A plus R is equal to 1. अच्छा, ये बताइए, if T is not equal to 0, if T is not equal to 0, then there is some heat transmitted. वहाँ पर heat transmitted होगा क्योंकि T is not equal to 0. और ऐसा सब्सटेंस जो होता है उसे कहते हैं डायथर्मैनस सब्सटेंस. क्या कहते हैं इसको? डायथर्मैनस सब्सटेंस. ठीक है. चौथा केस, we should know these all these cases here. Fourth case is T is equal to 0, A is equal to 0, R is equal to 1. ठीक है. T 0 है, A भी 0 है, तो R is equal to 1. R is equal to 1 मतलब जितना भी हीट आया है वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, isn't it? This is called as perfect reflector. इसे क्या कहते हैं? Perfect reflector. ठीक है. The next one is, this is important, R is equal to 0 and T is also equal to 0. ये बहुत important है. R is equal to 0, T is equal to 0. तो इसमें absorptivity is equal to 1. This is a very important one. बहुत ज़्यादा important होता है ये वाला substance. A is equal to 1. A is equal to 1 मतलब whatever heat is incident, that is absorbed. This is the property of what we call it as the perfect black body. Perfect black body. Perfect black body. ठीक है. इन शॉर्ट वी कॉल दिस एज PBB. जो भी हीट उसके ऊपर आता है वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है. उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 होता है. ठीक है. चलिए, अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करिए तो लेट्स गो फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज दिस सब्सटेंस.
What is meant by perfect black body? We also call this as Fairy's black body. Perfect black body, or we also call this as Fairy's black body. ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है. Now they can ask you to write the note on this, ठीक है. अच्छा, बाय द वे पेज नंबर 65 अगर आप देखते हो, पेज नंबर 65 चेक है प्लीज. ये दिया है देखो 65. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ये दिया हुआ है, या एग्जाम्पल्स ऑफ अथर्मेनस डायथर्मेनस बॉडीज. ये सब आपको पता होना जरूरी है. क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ अथर्मेनस सब्सटेंसेस? या यू शुड नो दिस: ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई. ठीक है, these are the examples of diatherminous substances. Then the examples of atherminous substances. Sorry, atherminous. See, the examples of atherminous are water, wood, iron. and diatherminous के ऊपर दिए हैं, ठीक है. इसको अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा, बिकॉज दे कैन आस्क यू दीज थिंग्स. वो पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा अथर्मेनस कौन सा डायथर्मेनस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक दिस फर्दर. नाउ आई विल टॉक अबाउट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी. क्या होता है भाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी? व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? अ बॉडी, क्या दिया है यहाँ पे? A body which absorbs all the incident radiation on it, entire radiant energy incident on it, is called as ideal or perfect black body. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा क्या होता है? तो उसके लिए यहाँ पर एक देयर वाज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट फेरी. उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, वो जो बॉडी था उसको फेरीज ब्लैक बॉडी ऐसा बोलते हैं. We call this as Fairy's black body. Let's have a look at this. Let's have a discussion about that. ये रहा Fairy's black body. चलिए, तो इसका क्या होता है? It is consisting of two concentric spheres. बाहर का एक स्फीयर है, अंदर का एक स्फीयर है, और दोनों एक दूसरे को ज्वाइन किए जाते हैं. Now these are the spheres, metal spheres. बाहर की तरफ से उसको सिल्वर पॉलिशिंग किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो भी हीट आएगा इधर, वो इंसिडेंट हीट रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा. सिल्वर पॉलिशिंग किया जाता है बाहर से, और अंदर से उसको कोट किया जाता है लैम्प ब्लैक से. द स्पेस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स इज इवैक्यूएटेड स्पेस. वैक्यूम होता है उसके अंदर, ठीक है. बाहर से सिल्वर पॉलिशिंग, अंदर से ब्लैक कोटिंग किया जाता है, कोटेड विद द लैम्प ब्लैक. और यहां पर एक एपर्चर होता है. देयर इज एन एपर्चर. थ्रू दिस एपर्चर द लाइट कैन फॉल इन दिस. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एपर्चर? वेरी स्मॉल. ये इस एपर्चर से वो लाइट अंदर चला जाता है. नाउ एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट टू दिस एपर्चर देयर इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन. वो कोनिकल प्रोजेक्शन असिमेट्रिकली प्लेस किया जाता है, असिमेट्रिकली, symmetrically नहीं, asymmetrically, so that whenever the light is falling on it, it gets deviated, correct? Reflect हो जाता है वहां से. Now during this first reflection, we say that more than 90%, 95% of its radiation is absorbed here. क्यों? क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है. ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी क्या होता है? It will absorb all the incident radiation falling on it. तो ये पूरा का पूरा जो 95% से ज्यादा वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है. तो बचा हुआ इधर जाएगा. सेकंड रिफ्लेक्शन के दौरान जो भी बचा था उसका 95% एब्सॉर्ब किया जाएगा. थर्ड रिफ्लेक्शन के दौरान जो भी बचा था उसका 95%. सो इन दिस वे this ray will undergo the multiple reflections, and during each reflection जो भी उसका पहला वाला हिस्सा था उसका 95% एब्सॉर्ब. सो आफ्टर फ्यू रिफ्लेक्शन वहां पे कोई रेडिएशन रहता ही नहीं है. I mean there is no heat over there. Is that understood?
तो पूरा का पूरा हीट उसने एब्सॉर्ब कर लिया है, एज सिंपल एज दैट. सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज फेरीज ब्लैक बॉडी और फेरीज एब्सॉर्बर. इसका इफेक्टिव एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई लाइट फॉल होता है तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो इफेक्टिव एरिया जो होता है इस फेरीज ब्लैक बॉडी का सिर्फ इतना होता है, क्योंकि इतने एरिया के ऊपर जो भी लाइट फॉल होगा वो अंदर इस तरह से चला जाए. इज दिस क्लियर? सो दिस साइज ऑफ द एपर्चर इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द फेरीज ब्लैक बॉडी. इज दैट अंडरस्टूड? समझ आया सबको? राइट, लेट अस टेक दिस फर्दर नाउ. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? नहीं ना? ओके, चलिए आपको मुझे कुछ पूछना है, सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल. एक पिक्चर दिखाया वहां पे मैं, ठीक है, वहां पर एक पिक्चर दिखाया गया. देयर इज वन पिक्चर शोन. एक हॉट बॉडी है, हॉट टी, एंड आइस, कोल्ड बॉडी वहां पे रखा है. The temperatures are 50 degree Celsius, that is 323, and -3 degree Celsius 270. तो मुझे पता करना है कि भाई इसमें which of these two bodies will radiate the heat. We are talking about the heat radiation. बताइए. कौन सा वाला बॉडी हीट रेडिएट करेगा? Please tell me. Yes, please. हॉट बॉडी, तो बर्फ कोई हीट रेडिएट नहीं करेगा. ओके. टेम्परेचर क्या है दोनों के? 323 एंड 270. ओके. मुझे आप बताइए, हमने 11th स्टैंडर्ड में रेडिएशन के बारे में कुछ सुना था. Radiation is taking place in the form of dash dash waves. Radiation is the fastest mode of heat transfer. Radiation travels at what speed? Radiation travels, जो सूरज से जो रोशनी यहाँ पर पहुँचती है, it is traveling in the form of radiation waves, electromagnetic waves. So radiation, basically radiation के बारे में हमें जो चीज़ें पता है, let me just jot down those bodies, those things. Radiation is the fastest mode of heat transfer. Very good. It is the fastest mode of heat transfer. It does not require any material medium. Very good. आगे बताइए. Doesn't require any material medium. आगे बताइए. What is the speed with which? Fastest मतलब what is the speed? अच्छा, radiation basically takes place in the form of electromagnetic waves. So what is the speed of these electromagnetic waves? It is the speed of light. What is the speed of light? 3 × 10⁸ meter per second. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में सुना है? ठीक है. तो सन से अर्थ तक जो भी कुछ आता है लाइट, बोलो, उसको कितना टाइम लगता है जी? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ सरफेस? कुछ टाइम है ना? कल बताओगे गूगल करके. टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ सरफेस कुछ है 13-14 मिनट्स, पता नहीं मुझे, आप बताइए. ओके, नाउ दिस वॉट एवर लाइट इज ट्रेवलिंग, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हीट भी होता है, लाइट भी होता है कि नहीं होता है?
थैंक यू फॉर साइलेंस। क्या चल रहा है यहाँ पे, ध्यान दो ना, बाद में देख लेना, बाद में देख लो ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसके अंदर हीट होता है या लाइट होता है या दोनों होते हैं, कितना कितना होता है, बताओ ना यार, कुछ नहीं बता रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 11th स्टैंडर्ड देखा है, देखा है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स, डज इट हैव अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। चैप्टर था का नाम था तुमको। हम जनरली क्या होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं कहाँ से क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें कैथोड रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, अल्फा रेज होते हैं, बीटा रेज होते हैं, विजिबल लाइट होता है, इंफ्रारेड रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते कि नहीं होते, और एक छोटा सा हिस्सा होता है जो विजिबल लाइट होता है, इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है। तो वो जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसमें जो भी कुछ आता है तो उसमें some part is light portion जहां से, and some part is heat portion. Light and heat they travel with the same thing. I mean दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये दिस इज गिविंग these lights, this is giving pure light, लेकिन यहाँ पर अगर हम सोडियम वेपर लैंप लगाए तो हीट के, लाइट के साथ साथ वो हीट भी देता है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो सूरज से जो भी लाइट आती है, जो भी रोशनी आती है, तो उसमें लाइट एज वेल एज हीट दोनों चीजें होती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? इट कंटेन्स बोथ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट एज वेल एज हीट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर ऐसा है तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ मैं रेडिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो भी हीट जा रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन। So this is given out in the form of heat. Yes, electromagnetic waves. तो मेरा पूछना है आप लोगों से, क्या ये जो चाय है यही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट या रेडिएट करेगा या आइस भी करेगा? आइस करेगा, हीट रेडिएट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो। ऑल द बॉडीज एट all the temperatures above absolute zero, all the bodies at all the temperature above absolute zero, they radiate the heat and this heat is in the form of electromagnetic waves. तो आइस जो है, इस आइस के यहां से भी waves निकलते हैं। Is this clear? At all the temperatures above absolute zero, all the bodies at all the temperatures above absolute zero, they radiate the heat. Is this clear to you? ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने वाले हैं, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एमिसिव पावर, और वी आल्सो कॉल दिस एज रेडिएंट पावर। एक नया टर्म है, नया टर्मिनोलॉजी, एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर वी डिनोटेड बाय आर या ई। It is a Q rad. What do you mean by Q rad? Heat radiated. Heat radiated. Is this radiating heat? हाँ, थोड़ा सा गर्म होता है, नहीं है? Is this light radiating heat? या थोड़ा सा गर्म होता है कि नहीं होता है? तो heat radiated per unit area per unit time. Heat radiated per unit area per unit time. तो उसका ऐसा यूनिट बताइए और डायमेंशंस बताइए. Then you tell me the dimension. What is the ऐसा unit of heat? Heat is measured in dozen, नहीं, liter, joule. Okay, joule. Area, meter square, and time, second. लेकिन आपको मालूम क्या? What is joules per second? अच्छा, heat is also measured in joule and the work is also measured in, बराबर है ना? And work upon time is power. This power is measured in watt. So this is watt per meter square. Watt per
मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज एमएससी पावर। एमएससी पावर इज मेजर्ड इन दिस। ये नया कॉन्सेप्ट है, नया डेफिनेशन है, नया प्रॉपर्टी है, और हमें इसको यूज करना है कई बार while solving the numericals। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने अब रेडियंट हीट पावर की बात करी है, this is a perfect black body. This is a perfect black body and this is ordinary body. Both these bodies are at the same temperature. Both these bodies are at the same temperature. This is PBB and this is ordinary body. उनका डायमेंशन वगैरह सब सेम है, but the heat given out by this black body we call it as QB, and heat given up by this ordinary body we call this as Q. So QB upon AT is the emission power of the black body or radiant power of the black body. Emission power EB या radiant power RB. And this is for ordinary body, E or R. Is that clear? It is Q upon AT, heat per unit time per unit area. Heat radiated per unit time per unit area upon A upon T. Is that clear? Is this okay? ठीक है? And अगर इन दोनों का रेशियो ले लूं मैं, इफ आई टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, मतलब R अपॉन RB, या फिर जिसको हम E अपॉन EB कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन E एप्सिलॉन। वी कॉल दिस एज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। समझे? We also call this as emissivity. क्या कहते हैं इसको? Emissivity. We denote it by epsilon. इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे emissivity फॉर ब्लैक बॉडी चाहिए तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसको E बोलेंगे। What is E is equal to for perfect black body? This is for any ordinary body. तो ब्लैक बॉडी चाहिए तो मुझे यहाँ पे आर भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी आर भी लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? I have to take this as RB and this is also EB. So EB upon EB is 1, RB upon RB is equal to 1. So for perfect black body, what is emissivity is equal to 1. लेकिन ब्लैक बॉडी के बारे में हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले? ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी जिसका एब्सॉर्प्टिविटी इज ऑल्सो 1, क्योंकि इट विल एब्सॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। सो वो ये बॉडी है जिसका एमिसिविटी एंड एब्सॉर्प्टिविटी दोनों 1 होता है। सो आई कैन से A इज इक्वल टू E फॉर एनी ब्लैक बॉडी। A इज इक्वल टू E फॉर एनी ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का ये प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर, प्लीज चेक। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ emissive power of the ordinary body to the emissive power of the black body at the same temperature. At the same temperature, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे they can ask you to define the emissive power at the same temperature. So both are at the same temperature. ठीक है? So perfect for perfect black body E is equal to 1, लेकिन इसकी वजह से A is equal to 1 आएगा and therefore I can say that A is equal to E. So for perfect रिफ्लेक्टर के लिए E is equal to 0 होता है, लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी विच इज हैविंग गुड एब्सॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी वो 1 होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। चलिए, तो ये जो मैंने आपको बताया ना A is equal to E, वो एक एक्चुअली लॉ बन जाता है, दैट बिकम्स लॉ। नो, रेडिएशन के अंदर देयर आर वेरियस लॉज, तकरीबन मेरे ख्याल से किरचॉफ्स लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ 3 हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। 4-5 लॉज है इसमें। कितने? 4 से 5। देखते हैं एक एक करके। तो पहला है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड इट्स थियोरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन
एंड इट्स थियोरेटिकल। तो यहाँ पे प्रूफ भी दिया हुआ है, थियोरेटिकल प्रूफ है। किरचॉफ्स लॉ, हाँ वो किरचॉफ्स करंट लॉ है एंड वोल्टेज लॉ है, वो केसीएल एंड केवीएल। ये जो है दीज आर द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड लॉज। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थियोरेटिकल प्रूफ। प्रूफ हम बाद में देखेंगे, पहले लॉ क्या है बोलते हैं। लॉ बहुत सिंपल है भाई, जो हमने यहाँ पे बताया ना कि A इज इक्वल टू E, दिस इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्या दिया है उसका स्टेटमेंट जो टेक्स्ट बुक में दिया है it says that at a given temperature, what is E? It is emissive power, the ratio of emissive power to the coefficient of absorption of a body is equal to its emissive power of a perfect black body at the same temperature for all the wavelengths. The ratio of E, emissive power to the coefficient of absorption A of a body is equal to emissive power of the black body at the same temperature for all the wavelengths. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है, यू नो, इफ आई ट्रांसफर दिस A here and EB here, तो क्या बन जाएगा? E upon EB, it is equal to A. But what is E upon EB? Emissivity। अभी हमने देखा था E upon EB, यहाँ पे देखा है ना, E upon EB is equal to emissivity। तो यहाँ पर अगर emissivity लिख लूँ तो this is what we get there। और वही मैंने बोला था कि this is one more format of the Kirchhoff's law। I hope this is clear। ठीक है, theoretical part है ये। तो that is the Kirchhoff's law। अगला लॉ देखने से पहले द नेक्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस लॉ। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 69, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है वो लॉ, देखते हैं। एनी डाउट सो फार? ठीक है, तो पहला लॉ कौन सा देखा हमने? किरचॉफ्स। रेडिएशन के ऊपर एक्चुअली 5 लॉज है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ भी है, लेकिन वो हम नहीं देखेंगे। विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखेंगे। चलिए मैं आपको कुछ एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। दिस परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज एट सर्टेन टेम्परेचर। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, जो कोई बॉडी होता है वो अगर हीटेड फॉर्म में है, हॉट बॉडी, सूरज है, तो सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है या रेडिएशंस होते हैं वो सेम वेवलेंथ के होते हैं या अलग अलग? अलग वेवलेंथ मतलब अलग फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सो सिमिलरली यहाँ पर अगर एक हॉट बॉडी है, तो दिस हॉट बॉडी एज वी कैन सी दिस इज मल्टीपल कलर्स आर सीन देयर। मल्टीपल कलर मतलब मल्टीपल वेवलेंथ। हाँ, लेकिन हर वेवलेंथ का कलर दिखता है क्या अपने को? कौन सा दिखता है? सिर्फ विजिबल पोर्शन, जो पोर्शन हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, वो वाला होता है। जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, वो हम देख नहीं सकते लेकिन होते, बराबर है ना? तो विजिबल पोर्शन एकदम छोटा सा हिस्सा होता है उसका। तो चलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे व्हेनेवर अ बॉडी इज देयर, सपोज दिस इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और वो बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मजे क्या है पता है क्या? उसके ऊपर जो भी हीट इंसिडेंट करता है वो पूरा एब्सॉर्ब करता है। तो उसका एब्सॉर्बिविटी 1 है एंड एमिसिविटी भी 1 है। एमिसिविटी भी 1 है, मतलब उसका एमिशन एबिलिटी भी अच्छा है, एब्सॉर्प्टिव एबिलिटी भी अच्छा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसीलिए तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 होता है। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है? A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इट इज एट सर्टेन टेम्परेचर T and it is giving out the electromagnetic waves at different wavelengths, मतलब different frequencies। अब अगर वो different wavelengths में दे रहा है, if it is giving in different wavelengths, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, रेडियंट पावर that is Q by T, radiant power, it is the amount of heat radiated per unit area per unit time।
लेकिन पावर बोला है ना तो Q/T सीट लिया जाएगा, इट विल बी टेकन एज ओनली Q/T। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए ऐसा, ये जो कर्व है इसका क्या मीनिंग होगा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसमें कोई भी एक कर्व अगर हम चुन लेते हैं, लेट मी से दैट वी सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कर्व। अगर ये कर्व की बात मैं कर रहा हूँ, so now the temperature of this curve is 5000 Kelvin. What does this mean? What does this mean? एक कोई भी एक कर्व सिलेक्ट किया मैंने, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। What is the meaning of this? There is a body and this body is at what temperature? 5000 Kelvin. So it will give out the radiations. वो जो रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से ऑलमोस्ट 3000, बराबर है क्या? लेकिन उसमें से ज़्यादा जो एनर्जी है वो कौन से टेम्परेचर पे गया है? आई मीन वो जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है वो कौन से वेवलेंथ पे गया है? वो इस वेवलेंथ पे गया है, समझे क्या? मोस्ट ऑफ द एनर्जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 5000 केल्विन के लिए ये सब उसका ग्राफ है, मतलब some energy is given out which is having wavelength 500 nanometer, कुछ एनर्जी 1000 नैनोमीटर से, कुछ एनर्जी 1500, 2000, 2500। तो द एनर्जी इज गिवन आउट, मतलब यहाँ पे द रेडिएंट पावर, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, उसमें सबसे ज्यादा कौन से वाला वेवलेंथ का है? समवट नियर टू 500, समझ में आ गया? उसे कहते हैं लैम्बडा मैक्स। उसको क्या बोलेंगे? लैम्बडा मैक्स। इट इज द वेवलेंथ एट विच द रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम। इट इज द वेवलेंथ एट विच द रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम। समझ में आ गया क्या? रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम, समझ में आ गया? ठीक है। और अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ, इधर टेम्परेचर उसका बढ़ा लिया, तो रेडिएंट पावर का जो लैम्बडा मैक्स है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएगा, ऐसे बढ़ के। इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस थिंग, समझ में आ गया क्या? मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गौर से देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर 3000 है तो इसका लैम्बडा मैक्स इधर है। फिर ये टेम्परेचर कितना है? 4000, तो इसका लैम्बडा मैक्स कम हो गया। फिर ये टेम्परेचर 5000 है तो लैम्बडा मैक्स और कम हो गया। और ये टेम्परेचर 5500 है तो ये मैक्स दिस टेम्परेचर लैम्बडा मैक्स जो है उसका वो और लेफ्ट की तरफ वो जा रहा है। कैन यू मेक दिस आउट? इजंट इट? मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे लैम्बडा मैक्स कम होगा, क्योंकि यहाँ का लैम्बडा मैक्स कितना है? 1000 है, फिर 500 है, फिर उससे भी कम है, फिर उससे भी कम है, समझे क्या? तो वी कैन से लैम्बडा मैक्स एंड टेम्परेचर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, or in other words lambda max into T is equal to B, lambda max into T is equal to B, constant बोलेंगे। now this constant is Wien's constant, ये लॉ है we call this as Wien's displacement law। डिस्प्लेस क्या डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे? लैम्बडा मैक्स लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होता हुआ नजर आ रहा है अपने को, इस तरह कम होता हुआ। इज दैट क्लियर? वी कॉल दिस एज Wien's displacement law। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया सबको ये? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर Wien's displacement law। द रेडिएंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी पर यूनिट चेंज ऑफ वेवलेंथ एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। कुछ समझ में आ गया आपको? ओके, लेट मी गो फर्दर। अब ये है अगला लॉ, इज द नेक्स्ट लॉ। अगेन दिस लॉ इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अभी तक कितने लॉ हो गए भैया? दो। कौन कौन सा? किरचॉफ्स लॉ, A इज इक्वल टू E और द रेशियो ऑफ E अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू EB, बराबर है क्या? अगला लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी होगा, इसके ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल भी होगा।
लेट्स टॉक अबाउट दिस लॉ नाउ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये दो साइंटिस्ट के नाम है, स्टीफन और बोल्ट्जमैन एक नहीं था, वो अलग अलग थे, लेकिन दोनों का नाम उसमें जोड़ दिया गया। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, टू टेल यू द फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्या है न्यूटन दिस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? ये सब डेफिनेशन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक से उठाए गए हैं, एचएससी में वही डेफिनेशन चलते हैं और वही लिखने पड़ेंगे आपको, प्लीज रिमेंबर दैट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, the rate of emission of radiant energy per unit area per unit, or the power radiated per unit area of perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. क्या समझे? Let us try to write down this. Rate of emission of radiant energy per unit area or power radiated per unit area, जिसे हम कहते हैं एमिसिव पावर। वी कॉल दिस एज एमिसिव पावर, क्योंकि पावर इज हीट अपॉन टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एटी, एंड दिस इज नथिंग बट द एमिसिव पावर। समझे क्या? तो एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. Fourth power of its absolute temperature T raised to 4. समझे? चलो, तो मुझे अभी इसको लिखना पड़ेगा। चलिए, क्या लिखेंगे? एमिसिव पावर क्या होता है जी? एमिसिव पावर अभी अभी हमने देखा था। व्हाट इज एमिसिव पावर? फॉर्मूला पता होना जरूरी है। एमिसिव पावर इज द रेशियो ऑफ डैश डैश अपॉन डैश डैश, Q upon 80. Absolutely correct. Emissive power is actually Q upon 80. So I'll just substitute here. This is nothing but Q upon 80 is equal to, जिसे हम emissive power कहते हैं of a black body. I'll call this as EB, and this is directly proportional to T raised to 4. सही है? This is the, we can say this is the heat radiated per unit area per unit time. ठीक है? And then I will say that EB is equal to the constant of proportionality होगा सिग्मा T raised to 4. ये है वो important formula. This is an important formula. EB is equal to sigma T raised to 4, where this sigma is Stephen's constant. Stephen's constant 5.67 into 10 raised to minus 8 joule per meter square Kelvin raised to 4. ठीक है, उसके डायमेंशंस का ही आपको वो पूछ सकते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, पूछ सकते हैं। वो कर पाओगे? कल बताओगे मेरे को डायमेंशन उसके? टुमारो MLT डायमेंशंस 11वीं में था ना अपने को? अभी नहीं, कल होमवर्क के तौर पर ये मेरे को बता देना डायमेंशंस ऑफ दिस। चलिए, तो अब मुझे EB क्या होता है? दिस दे हैव गिवन दिस फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बस यहाँ पर आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ खत्म हो गया। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज ओवर हियर। Now I have to apply this Stephen Boltzmann law for the black body. Let's say EB is equal to Q upon 80 into Q upon 80 is equal to sigma T raised to 4. यही चीज अगर मुझे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चाहिए, बिकॉज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एक्सक्लूसिवली फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यही लॉ मुझे अप्लाई करना है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए तो कैसे करेंगे? बिकॉज वी डू नीड टू डू दैट क्वाइट ऑफन। ठीक है, कई बार वो अपने को करना पड़ता है कि भाई उसको स्टीफन लॉ जो है वो मुझे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी नहीं, आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द एमिसिविटी?
अभी थोड़ी देर पहले हमने मार्क किया था, देख लो ना जरा, टेक्स्ट बुक है। हाँ, E, small e, emissivity is equal to emissive power of ordinary body divided by emissive power of the black body at the same temperature. करेक्ट है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा. व्हाट इज द एमिसिव पावर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी? इट इज E into EB. But what is EB is equal to sigma T raised to 4. So this becomes the emissive power of the ordinary. This becomes the emissive power of the ordinary body. Is this clear? ठीक है? All right. चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे अब एक डायग्राम कंसिडर कीजिएगा. प्लीज कंसिडर दिस डायग्राम. ये एक डायग्राम है. दिस इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी विच इज हॉट kept in the colder surroundings. ठीक है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है T और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है T0. ठीक है? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम गिविंग यू. चेक हियर प्लीज. ठीक है? और यहां पर एक ऑर्डिनरी बॉडी है विच इज एट टेम्परेचर T. इट्स अ hot body and it is kept in the colder surroundings, but these cold surroundings are behaving like a black body. Please understand what I am saying there. सराउंडिंग ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है या बॉडी भी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर सकता है. तो मैं दो अलग अलग सिचुएशंस या सिनेरियोज यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. ओके, आई एम कंसिडरिंग हियर टू डिफरेंट सिचुएशंस या सिनेरियोज. आप एक एक करके मुझे उसका जवाब दीजिएगा प्लीज. प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस. और उसके लिए आपके सामने या प्लीज चेक हियर. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी? फर्स्ट केस में यहां पर एक बात बताइए. व्हाट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी? एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया per unit time. Can I call this as EB? It is the energy radiated by black body per unit area per unit time. And is it equal to sigma T raised to 4? Yes. सही है? Okay. This is the energy radiated by black body. So this is the energy which is given out by this. ये वाला body जो है hot body, it is giving out this energy. Yes or no? लेकिन सराउंडिंग्स जो है इट इज ऑल्सो रेडिएटिंग सम हीट. सराउंडिंग्स जो है विच इज एट टेम्परेचर T0. कोल्ड हो गया तो क्या हो गया? उसके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना. आइस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. तो व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू हियर? दूसरी चीज जो मैं अभी यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ, या हीट एब्सॉर्ब. तो यहाँ पर वो जो आएंगे कोल्ड बॉडी की तरफ से जो भी कुछ रेडिएशंस आएंगे वो कितना होगा? सिग्मा T0 रेज़ टू 4. और इसकी तो एक क्वालिटी है, ये ब्लैक बॉडी है तो इसके ऊपर जो भी हीट आएगा वो एब्सॉर्ब करेगा. चलिए तो मैं क्या बताऊंगा फिर यहाँ पर अब? एनर्जी एब्सॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ये तो चिपका देने का हमेशा. इज इक्वल टू सिग्मा T0 रेज़ टू 4. अभी आप लोगों ने बताया ना मेरे को, जितना उसके ऊपर आता है वो सब खा लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है? ओके, दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. फ्रॉम सराउंडिंग्स. अब आप मुझे बताइए कि भाई इसने इतना रेडिएट किया और इतना एब्सॉर्ब किया. सो ये हॉट बॉडी है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा वहां पे? ओवरऑल देयर विल बी द लॉस ऑफ हीट ना. ओवरऑल व्हाट कैन वी से देयर? ओवरऑल देयर इज द लॉस ऑफ हीट. सो आई विल से हियर कि नेट लॉस ऑफ
heat or net loss of energy by black body per unit area per unit time is equal to sigma t raised to 4 minus t0 raised to 4. I hope this is clear. I hope this is clear. Okay, यही चीज अगर ब्लैक बॉडी की वजह से होती तो क्या होता? ठीक है, सराउंडिंग्स, लेट्स से सेम थिंग वी विल अप्लाई फॉर द ब्लैक बॉडी नाउ. प्लीज चेक हियर, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे. सेम चीज वी विल अप्लाई फॉर द ब्लैक ऑर्डिनरी बॉडी नाउ. ऑर्डिनरी बॉडी, ये है ऑर्डिनरी बॉडी विच इज अ हॉट बॉडी. ठीक है, तो एमिसिव पावर क्या होता है जी इसका? I'll write here now. एनर्जी, बोलिए, रेडिएटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. क्या होता है जी? क्योंकि मैंने एमएससी पावर का फॉर्मूला देखा था ना, व्हाट इज ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ई, करेक्ट? तो देखिए एमएससी पावर अगर मुझे चाहिए, दिस इज नथिंग बट द एमएससी पावर, एंड व्हाट इज दैट एमएससी पावर इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू ई बी. तो बस ई बी का जो है, जो भी कुछ हमने लिखा है, या स्मॉल ई इंटू सिग्मा टी रेज टू 4. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब ये जो है ये कोल्ड सराउंडिंग्स में रखा है तो इट विल एब्सॉर्ब दिस थिंग. तो व्हाट इज एनर्जी, बोलिए, एब्सॉर्ब, एनर्जी एब्सॉर्ब बाय किसने? ऑर्डिनरी बॉडी per unit area per unit time from surroundings. Can you please tell me about this? Surroundings से वो absorb क्या करेगा? नहीं करेगा. चलिए मैं आपको बता देता हूं. एक्चुअली वो absorb कर रहा है ना, सराउंडिंग से वो एब्सॉर्ब करेगा. उसके लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू. सही है. अच्छा, इसका मतलब है व्हाट इज क्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू. बराबर है क्या? अब क्यू बोलिए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की अगर मैं बात कर लूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यहां पर भी अपॉन 80, यहां पर भी अपॉन 80. सही है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा, इट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट इज इक्वल टू, लेकिन हमें किरचॉफ्स लॉ क्या बताता है? फॉर एनी बॉडी ए इज इक्वल टू ई ना. तो मैं ए की जगह पर ई लिखूं कि नहीं? एंड दिस इज द हीट एब्सॉर्ब. क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी ना. ये जो होगा ए टाइम्स ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है, या ई टाइम्स ब्लैक बॉडी, तो इट विल बी ई इंटू सिग्मा T0 रेज टू 4. इज दिस क्लियर? हेलो. तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा? ई इंटू सिग्मा T0 रेज टू 4. करेक्ट ना? क्योंकि ये ब्लैक बॉडी सराउंडिंग्स है. सो व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी विच इट इज गिविंग? यहाँ पर जो एनर्जी जाएगा यहाँ से सिग्मा T0 रेज टू 4, और इसमें से ए टाइम्स वो एब्सॉर्ब करेगा, ए टाइम्स, बट ए इज इक्वल टू ई, किरचॉफ्स लॉ. ए इज इक्वल टू ई, किरचॉफ्स लॉ. तो ये आएगा. अब मुझे इसका नेट लॉस बताइए प्लीज. तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दिस? मुझे नेट इफेक्ट लिखना है यहाँ पर. इसका क्या आएगा बताइए? What am I going to write here? Therefore, net loss of energy by ordinary body is equal to क्या आएगा? यही आएगा सेम, सिर्फ उसको E से मल्टीप्लाई करने का. E टाइम्स सिग्मा T रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4. That's it.
यही आपको याद रखने लायक चीज है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये दिस इज इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। सो ये सारे लॉज हमने यहां पर देखे, 4 लॉज देखे अभी तक। कौन कौन से? किरचॉफ्स लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन, 3 हो गया। और अब आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके लिए भी आपको एक से प्रैक्टिकल होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। देयर इज अ प्रैक्टिकल फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू द लॉ। और ये लास्ट चीज है इस टॉपिक के अंदर, रेडिएशन का थ्योरी पार्ट का ये लास्ट वाला हिस्सा है। दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी। ओके, फिर उसके ऊपर सोलर वगैरह नहीं दिया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा। 11 में था ये, दिस वाज देयर इन 11th स्टैंडर्ड। अभी हम उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे टायर रखी है, दिस इज द टी, हॉट टी, इट इज एट टेम्परेचर T1, सराउंडिंग टेम्परेचर T0। तो आफ्टर सम टाइम इसका टेम्परेचर फॉल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? Why? Because overall effect होगा कि it is giving out the heat and the surrounding is absorbing the heat, correct? तो overall effect ये हो जाएगा कि इसका temperature will go on falling down. अब we will say the rate of loss of heat Q, rate of loss, rate with respect to time होता है, so dq by dt is directly proportional to, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग का लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, it says the rate of loss of heat of a body is directly proportional to, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सेस टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों को डिफरेंस, T minus T0 of the body and the surroundings provided this difference in temperature is small। बस ये आपको लॉ हमने देखा है। सो we will call it as dq by dt। इन्होंने dt by dt दिया है, लेकिन ये होगा उसका दूसरा तरीका लिखने का। So rate of loss of heat is directly proportional to excess temperature of the body over surrounding। That means इसका टेम्परेचर अगर T है तो T minus T0, ठीक है, T minus T0। पहले अगर उसका टेम्परेचर है समझो 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस, बाद में वो फॉल होके हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का एवरेज लिया जाएगा और दिस टी, समझ में आ गया? एवरेज लिया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, एवरेज लिया जाएगा माइनस T0। इवेंचुअली दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वी आर गोइंग टू यूज इन मैथ्स में एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसका एक स्पेशल एप्लीकेशन है, 12वीं कक्षा में है, ठीक है, मैथ्स में है ये एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स 2। तो उस टाइम पे भी हमने को ये देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर t के जगह पर T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0 लिया जाएगा। नो, मॉडिफिकेशन एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर। क्या मॉडिफिकेशन है भाई? वी नो दैट Q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। प्लीज चेक हियर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मॉडिफिकेशन है और क्यों है ये मॉडिफिकेशन। There is little bit of modification. Let me explain you what is that modification. आपको तो पता है अच्छे से, what is Q is equal to ms into, हाँ, तो डेल्टा टी जो हम लिखते हैं ना यहाँ पे, उसको डेल्टा क्यू लिखना होता है बिकॉज चेंज इन द हीट, और उसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू डी टी।
तो बस मुझे यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा, डी क्यू के जगह पर क्या आएगा, डी क्यू के जगह पर आएगा एम एस इंटू डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये सी टाइम्स टी एवरेज माइनस टी जीरो. Now mass and the specific heat ये constant से उधर चले जाएंगे, so it will become dt by dt is equal to C upon ms into T average minus T0. सही है, is that here? ठीक है. और इसलिए हम इसको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो बोल रहे थे ना, उसके जगह पर मुझे उसको क्या बोलना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉल, बिकॉज T is the temperature. So I have to call this as rate of fall of temperature, rate of fall of temperature, which is equal to dt by dt is proportional to T average minus T0. ये है the modified form of Newton's law of cooling. This is the modification. We call this as modification. I hope this is clear to you all. ठीक है. We can start with the MCQs here. लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग 11वीं कक्षा का एक टॉपिक था हमारा, इफ आई गेट हियर द टेक्स्ट बुक ऑफ 11th स्टैंडर्ड, प्लीज चेक हियर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट. अगर मैं 11वीं कक्षा का टेक्स्ट बुक एक देख लूं, SSC HSC books, 11th science, 11th physics, 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक. दिस वाज द टेक्स्ट बुक ऑफ 11th स्टैंडर्ड, अगर आपको याद होगा गलती से. ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक था, द नेम ऑफ द टॉपिक वाज थर्मल प्रॉपर्टीज. ये पेज नंबर 114. इस टॉपिक की अगर बात करें, पेज नंबर 114, थर्मल प्रॉपर्टीज. तो थर्मल प्रॉपर्टीज में बाकी सब देखते देखते लास्ट पार्ट में आपने क्या क्या सीखा था, मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट वगैरह वगैरह, ये सब देखा, सब्लिमेशन, फेज डायग्राम. और उसके लास्ट में आपने हीट ट्रांसफर देखा था. दिस वाज द हीट ट्रांसफर. और हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, देन दिस वाज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, ये वाला फॉर्मूला देखा था आपने, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये रिवाइज करके आए. थर्मल रेजिस्टेंस, देन कन्वेक्शन देखा था, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्शन. तो कंडक्शन इज टोटली गिवन इन 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, रेडिएशन का सिर्फ आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिया था, देखिए यहाँ. ठीक है, अब मैं 11th की चीजें यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, आपका जो ये कोई मतलब 12th HSC के लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू CET, आईसर या फिर JEE, नीट, उन सब एंट्रेंस के लिए आपको 11th के टॉपिक्स मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट है. और कनेक्शन वो वाले चैप्टर का और इस चैप्टर का ये वाला कनेक्शन है. रेडिएशन इज कनेक्टेड टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के बाद इसको चिपकाने का है. लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको वहां से जुदा किया, यहाँ पे दे दिया 12th. लेकिन इसका एक्चुअल ओरिजिन किधर है, उधर है. मतलब आप NCERT में अगर आप देखोगे तो ये वाला टॉपिक उधर चिपका हुआ है. इज दैट अंडरस्टूड, समझ में आ गया. तो इसलिए हम 11th के वो वाले टॉपिक्स के MCQs भी इसके साथ सॉल्व कर लेंगे NCERT के. इज दिस क्लियर. तो थियोरेटिकली दिस चैप्टर इज ओवर, थियोरेटिकली दिस चैप्टर इज ओवर. अब हम क्या करेंगे, हम 11th स्टैंडर्ड के तो कर लेंगे ही वो सब चीजें, लेकिन उससे पहले 12th का जो टेक्स्ट बुक है ये, तो 12th के हम न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे लिए मायने रखते हैं. व्हाट,
ये 12th की टेक्स्ट बुक है, 12th के टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स है, एमसीक्यूज ऑफ कोर्स एंड न्यूमेरिकल्स, तो मेरे ख्याल से वहां से हम शुरू करें। चलो स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्लस रेडिएशन दोनों के न्यूमेरिकल्स, एंड देन आई विल गो फॉर एनसीईआरटी। डन। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द केटीजी के न्यूमेरिकल्स, द न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। So I'll begin with this now. This is the question. If the density of दिया यहाँ पे कमीशन, बस दैट्स इट, हो गया, इतना ही है। If the density of oxygen is this at the pressure, find the root mean square velocity of the oxygen molecules. चलिए बताइए कैसे करेंगे। आंसर्स उसके सही होते हैं बेटर। चलिए भाई बताइए। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए। लाउडर एंड क्लियर प्लीज। If the density pressure is equal to, डायरेक्ट प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट इज प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, करेक्ट। तो डेंसिटी तो यहाँ पर मुझे बताया गया है, करेक्ट ना? ओके, और pressure is also given, so I can find out what is this C, that's it। हाँ हो गया, हो गया ना। प्रेशर के अलग अलग फॉर्मेट्स है ना वहाँ पे, कि डेंसिटी देखिए अलग अलग फॉर्मेट बोले तो 1/3 डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर, लेकिन इसका और एक फॉर्मेट, टोटल मास इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर। तो अलग अलग फॉर्मेट्स है ना इसके, इसमें से ये रेड वाला फॉर्मेट मैं यूज करूंगा। सो व्हाट इज C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p अपॉन रो, दैट्स इट। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज प्रेशर देयर, 10⁵, डेंसिटी 1.44। तो भाई देख लियो अभी ये क्या बनेगा इसका, दिस 3 का रूट 3 होगा,
इंटू रूट 3 नहीं 30 कर लेते हैं, I'll make it as 30 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट, एंड 1.4 का स्क्वायर रूट आएगा 1.2। ओके, रूट 30 का आएगा 5 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है? 30 का आएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब मैं लॉग टेबल से नहीं करूँगा यार, बहुत टाइम जाएगा उसमें, आप मुझे कैलकुलेटर से बताइए प्लीज़। ऑन कम ऑन, तुम बता दो क्या है। हाँ 5 पॉइंट, बस 5.477, 4 डिजिट अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लूँगा 12 से, 12 वन सा 12, कितना आएगा ये? 4 सा पॉइंट आएगा यहाँ पे 48, 6 आएगा 60, 5 सा 60, 7 आएगा 6 सा, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4.56, 10⁻² आएगा बाहर इंटू 10⁻², और दिस इज 456 मीटर पर सेकेंड। वेल दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया, बट दैट्स द आंसर। इज दैट ओके? दिया है? हाँ, क्या बात कर रहे हो, मैंने कहाँ से लाया? एक सेकेंड, ये देखो, ये बुक क्वेश्चन है भाई, एक्सरसाइज, और इधर है आंसर 2 में का 4 है ये। हाँ 11 नहीं, 12 का, 12 का बुक है भाई, तो कहाँ से शुरू है फिर? टोटल क्वेश्चंस कितने हैं वहां पे? देखो एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज के बाद आंसर इन ब्रीफ दिया है, उसमें से चौथा क्वेश्चन, अच्छा व्हाट इज इक्वेशन फॉर मास ऑफ, अच्छा उन्होंने क्वेश्चन ही बदली किया, क्या ही बात है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि देखिए, चौथा नहीं, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा दिया है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, 400 जो भी दिया वही आंसर है, ठीक है। पता नहीं, अच्छा बाय द वे आप लोगों का ये तैयार है ना, व्हाट डू यू कॉल इट, फॉर्मूला वगैरह टेस्ट के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही मतलब, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या भाई, कल से करना है, एक कर लेते थे, एक कर लेते लास्ट। छोटा एकदम क्वेश्चन ये, तो कैलकुलेट अटक रहा है यार बहुत। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या दिया है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। सो पहला टेम्परेचर दिया है T1 इज इक्वल टू 30 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 120 केल्विन, चलो कोई बात नहीं। अब रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड मतलब मुझे क्या चाहिए? आरएमएस नहीं चाहिए, आरएमएस मतलब उसका रूट होता है, मीन ऑफ द स्क्वायर्स। सो लेट मी कॉल दिस एज V1 स्क्वायर, V1 बार का स्क्वायर एंड V2 बार का स्क्वायर, ये चाहिए, समझे? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द आरएमएस वेलोसिटी?
CRMS C bar या V bar is equal to square root of VRT upon M0. सही है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, V बार स्क्वायर या इसको C बार स्क्वायर या CRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन M0, ये हो जाएगा राइट। तो सेम मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा ऊपर का, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला here, क्या मिलेगा 3RT1 अपॉन M0 डिवाइडेड बाय 3RT2 अपॉन M0। तो इसमें से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इट इज T1 अपॉन T2 एंड दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 120 and that is equal to 1/4. That's it. Is this okay? We'll stop here. Okay.